Hello everyone. We are discussing the questions under Geography Prelims series, and under this series we have already discussed the questions of geomorphology. Now we have reached to climatology, the another unit under geography subject, and today's topic of discussion is heating of atmosphere. The reason I have picked up this topic because in 2024 one question was asked from this topic, and in 2023 also one more question was asked from the same topic. So it means that topics get repeated in the prelims as well as mains examination. So that is the reason that we are focusing on the important topics based on the questions of previous year, considering that these themes will get repeated again and which keep on happening in UPSC. This is the best example. So एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं. Question is about the heating of the atmosphere, wherein it says that atmosphere is heated more by the incoming solar radiation than the terrestrial radiation. Second part, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are absorber of long wave radiations. And based on these two statements, the options have been framed. There is another question of 2023 which is also based on the heating of the atmosphere. So let's understand the concept first. पहले concept को समझ लेते हैं और फिर questions पे आएंगे. Heating of atmosphere. So we know that the primary source of energy to the earth is sun. So let's suppose this is sun, and let's suppose this figure represents earth. So sun से जो energy आती है that comes in the form of insolation, incoming solar radiation जिसको बोलते हैं. Over here we'll use the knowledge that we gained during the school days. School days में we studied about कि wavelength of any radiation depends on temperature. तो lambda wavelength को मैं बोल रहा हूं is inversely proportional to temperature. This is the concept that we learned during the school days कि wavelength और temperature में inverse relation होता है. तो इसका मतलब कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा. इनवर्स रिलेशन का मतलब यही हुआ. तो सन का टेम्परेचर देखते हैं. कोरोना पर सन का टेम्परेचर रिमेन्स नियरली 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इज वेरी हाई, इसका मतलब वेवलेंथ बहुत कम होगा. तो इट मीन्स दैट दिस incoming solar radiation, let's say it is having lambda 1, it is a short wave radiation. Can I say so? मैंने किस लॉजिक से इसको बोला? क्योंकि सन का टेम्परेचर इज वेरी हाई और टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ जो उससे निकलेगी वो बहुत कम होगी. So this incoming solar radiation, let's say this is the atmosphere that is surrounding the earth's surface. ये incoming solar radiation यहाँ पहुंचेगा. So some of the radiation will be absorbed in the atmosphere, a fraction of it. A lot of radiations would be reflected back to the outer space. So point I'm trying to make here is कि let's say sun से 100 unit radiations निकलते हैं तो only 51 units reach to the earth's surface.
एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सरफेस की बात कर रहे हैं कि सरफेस पे जो भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हुई है सन से, ओनली 51% ऑफ इट विल रीच टू इट। तो और ये जो 51% है, इसको भी अगर हम देखें तो इट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये इंफ्रारेड रेज है, कितनी होती है वो? दैट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 50 to 55%। इसके बाद विजिबल रेंज, मैक्सिमम एनर्जी विजिबल रेज के फॉर्म में, दैट इज अराउंड 35 to 38%। एंड लास्ट इज यूवी रेज। कुछ यूवी रेज भी पहुंचती हैं, दे आर नियरली 6 to 7%। तो ये जो टोटल यूनिट आई उसमें 55 to 50% इज इंफ्रारेड, visible range कुछ 35 to 38%, and remaining is UV rays. So these things are responsible for heating of the earth's surface as well as the earth as a whole. जब ये इसकी हीटिंग होगी, पहले सरफेस की हीटिंग फिर पूरी बॉडी की हीटिंग होगी। अपने को पता है कि हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स हैं। वन इज कॉल्ड कंडक्शन, अगेन the knowledge of school days. Second is called convection, and third is called radiation. Conduction में क्या होता है कि when substance is in close contact, तो particles transfer the energy without their actual movement। ये ऐसे टच में है, ये हीटेड है, तो ये हीटेड बॉडी जब इसके टच में आएगी तो इसको एनर्जी ट्रांसफर कर देगी, बट देयर वुड बी नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी। दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। सो ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे आप देखिए, कन्वेक्शन का बेस्ट एग्जांपल, जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो जो बॉइलिंग दिख रही है दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफर और द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। बर्नर पे जब आप वेसल को रखते हैं तो नीचे का पोर्शन पहले गर्म होगा, और नीचे का पोर्शन गर्म होगा तो जो पानी उसके ऊपर है वो हीट अप हो जाएगा। दैट पानी, दैट वाटर पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। तो ये मूव करेगा, यहाँ पे जो वाटर है ये इसकी प्लेस लेने आ जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट है। एंड थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन में जो एनर्जी ट्रांसफर है दैट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तो ये बात अगर समझ में आती है, तो जब ये अर्थ हीट अप हो गया तो ये अपने सरफेस पे, जो मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो इन दोनों की तो हीटिंग हो जाएगी कंडक्शन की वजह से, क्योंकि दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। इनफैक्ट जो एयर की लेयर इज इन टच विद द अर्थ सरफेस, वो भी कंडक्शन के थ्रू हीट हो जाएगा। बट सर, द एयर विच इज a bit away from the surface, जो कांटेक्ट में एकदम से नहीं है, वो हीट अप तो होगी बट इट विल मूव अपवर्ड, क्योंकि जब ये हीट अप होगी तो लाइट हो जाएगी, लाइट होगी तो ऊपर मूव करेगी। और जो यहाँ पर थोड़ी सी भारी एयर है, क्योंकि ये टच में नहीं है तो ये थोड़ी सी भारी होगी, क्योंकि ये ठंडी होगी, इट विल टेक इट्स प्लेस। तो इस तरीके से ये कन्वेक्शन होगा यहाँ पर। But again, it is also not the dominating factor. Maximum जो energy
रिलीज होगी दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्योंकि अपने को पता है कि एयर की भी डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट के तीन तरीके होंगे सर एनर्जी के। एक तो कंडक्शन एट दी सरफेस लेयर, कन्वेक्शन टू सम एक्सटेंट, कन्वेक्शन कंडक्शन से ज्यादा होगा, बट द मोस्ट डोमिनेंट फिनोमिना वुड बी रेडिएशन। ये जो हीटेड बॉडी है ये रेडिएशंस रिलीज करेगी, ये एनर्जी रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। This radiation which is released by Earth is called terrestrial radiation. Radiation जो अर्थ हीट होने के बाद रिलीज कर रहा है दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सर अर्थ का टेम्परेचर लेस से T2 है। डोंट यू थिंक टेम्परेचर ऑफ T2 would be much less than temperature of the sun? सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो डोंट यू थिंक जो लैम्डा इससे जुड़ा होगा, इस टेम्परेचर से एसोसिएटेड जो रेडिएशन ये निकल रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लेट्स से वो लैम्डा 2 है, डोंट यू थिंक दिस लैम्डा 2 वुड बी वेरी हाई? वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, इनवर्स रिलेशन है अभी बोला मैंने। तो लैम्डा 2 जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस में से एसोसिएटेड है, कैन आई से इट इज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन क्यों? क्योंकि अर्थ से जो रेडिएशंस निकल रहा है विच इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ का टेम्परेचर इज रिलेटिवली वेरी लेस कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसलिए द वेवलेंथ associated with the terrestrial radiation is very long. तो इसलिए long wave radiation. These long wave radiations, let's say it strikes with the greenhouse gases present in the atmosphere, carbon dioxide, methane, water vapor, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब long wave radiations. So these long wave radiations would be absorbed by the greenhouse gases present in the atmosphere. These greenhouse gases will absorb the insolation also, but in very less quantity क्योंकि वो short wave radiation है। These greenhouse gases have the tendency to absorb long wave radiations. तो long wave radiations का absorption ज़्यादा होगा compared to the incoming solar radiation जो short wave radiations हैं। तो the primary reason, the primary factor responsible for heating of Earth's atmosphere is the terrestrial radiation. So it is the primary factor for heating of atmosphere. In fact, these greenhouse gases, ये जो greenhouse gases हैं which have absorbed the radiation, the terrestrial radiation, क्योंकि ये फिर heated up हो जाएंगे, ये भी radiations release करेंगे सर। This is called re-radiation or also called counter radiation. They are also responsible for heating of atmosphere and they are also dominant. They are the dominant factor for heating of atmosphere. So among these three, the least heating is done by the incoming solar radiation. Is that okay? Then it is the terrestrial radiation and then it is the re-radiation or counter radiation. Counter radiation matlab radiations released from the greenhouse gases present in the atmosphere. So this is how heating of the
atmosphere is happening. So primary reason for the heating of atmosphere are the terrestrial radiations and the counter radiations or the re-radiations. So this is how the heating of atmosphere is going on. इसीलिए हम बोलते हैं जब ग्रीन हाउस गैसेस का कंटेंट द अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है दैट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. यही आइडिया है ग्लोबल वार्मिंग का और यही आइडिया है क्लाइमेट चेंज का. तो आई होप दिस मेक्स सेंस. नाउ लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस. Let's see the first question. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation. No, sir, it is heated less. So that is why statement 1 is incorrect. Carbon dioxide, greenhouse gas, and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. Correct statement abhi discuss kiya. So statement 2 is correct, statement 1 is incorrect. Accordingly, answer becomes D for Delhi. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो 23 में पूछा है. इसमें थोड़ा सा स्कूल डेज का नॉलेज फिर से यूज होगा और थोड़ा सा इसमें हीट बजट का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है जो हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे. बट विल ट्राई एंड फिगर आउट दिस क्वेश्चन बाय द नॉलेज दैट वी हैव टिल नाउ. With reference to Earth's atmosphere, which of the following statements is correct? The total amount of insolation received at the equator, मैंने बोला कि हीट बजट का कॉन्सेप्ट आएगा, is 10 times more than what is received at the poles. देखो, it is the reality कि इंसोलेशन मैक्सिमम इक्वेटर पर होता है. मैंने लास्ट जब एटमॉस्फेयर का डिस्कशन में कर रहा था लेयर्स का तब भी मैंने वो बात डिस्कस की थी कि इंसोलेशन मोस्टली इक्वेटर पर होता है क्योंकि जो सन का एपरेंट मूवमेंट है वो ट्रॉपिक्स के बीच में होता है. तो इट इज मोस्टली वर्टिकली ओवरहेड द इक्वेटर. तो इसलिए इंटेंस हीटिंग इक्वेटर पे होती है और डिफ्यूज्ड हीटिंग पोल्स पर होती है. बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इट इज अराउंड 4-5 टाइम्स. इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा when we'll take up the topic called heat budget. If you want the heat budget topic to be taken up, so let me know in the comment section. I'll take it up. थोड़ा जल्दी में ही इसको निपटा देंगे once I get to know कि you want this topic. सेकेंड ऑप्शन को पढ़ते हैं. इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट, तो ये पहला तो गलत हो गया. दूसरे को देखते हैं. इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन. मैंने क्या बोला? अभी मैंने आपको दिखाया कि इंसोलेशन जो आ रहा है अर्थ सरफेस पे उसमें इंफ्रारेड इज नियरली 55%. सो इट इज नॉट 2/3. 2/3 मतलब तो हो गया 66-67%. तो इट इज नॉट द आइडिया. सो दिस गोज रॉन्ग. अगर ये बोलता हाफ तो इट वुड हैव बीन करेक्ट. तो इसलिए दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. कम टू द थर्ड स्टेटमेंट. Infrared waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Seems correct. Seems correct, but we are not very sure. So come to the next statement. Infrared waves are part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. अगर अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है जो हमने स्कूल डेज में पढ़ा था तो अपने को पता है कि ये विजिबल रेंज है जो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर रफली होती है. इससे कम वेवलेंथ इज ऑफ यूवी रेज, उससे कम इज ऑफ एक्स रेज एंड उससे भी कम इज गामा रेज. 700 नैनोमीटर से ज्यादा इज इंफ्रारेड एंड उससे भी ज्यादा
is radio waves. So this is the electromagnetic spectrum that we studied during the school days. उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने को बोल रहा है कि इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. नो, विजिबल स्पेक्ट्रम इज दिस वन. इंफ्रारेड उसके बाहर है. विजिबल स्पेक्ट्रम में विवग्योर आता है. आपको कमेंट करके बताना है विवग्योर का फुल फॉर्म क्या है. तो आईआर तो उसका पार्ट नहीं है, इंफ्रारेड उसका पार्ट नहीं है, तो दिस गोज रॉन्ग. तो इट मींस जो सी ऑप्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राइट है, क्योंकि ये जो बात बोल रहा है इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर. ये तो पता था अपने को कि वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है, बट नाउ इट इज क्लियर कि इट इज लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर. So C becomes the answer to this question. So this was the topic. See you in the next session. All the very best. Keep on reading, keep on understanding the topics. Do let me know also that if you want some other topic to be discussed, if you find certain topics to be very difficult in geography, do let me know. I'll take up that topic. Thank you so very much. Have a great time.